Hello and welcome back to Defense Info, a one-stop solution for all your defense needs. So today we'll be discussing about the AFCAT 2 2021 strategy and the things that you need to follow for this upcoming examination that is about to happen in roughly around 2 months of time now. And before that, if you haven't filled up the form, today is the last date for registration, that is 30th June up until 5 o'clock. So please make sure that you have filled the form and make the payment, and your form is incomplete. So you have around 2 months of your preparation for this AFCAT examination, and believe me, AFCAT is a very simple exam. It's not a very complex exam unlike your UPSC and all of that. So this is a very simple exam, and 2 months is more than ample amount of time. So if you still thinking that whether I will be able to do it in 2 months or not, so it is more than enough, guys. I am telling you this thing, and you will not just clear the exam, but you will ace the exam with more than 200 plus scores. And believe me, scoring 200 plus is not a very big deal in AFCAT especially. So let's begin. Firstly, we will just check down the breakdown of marks here. So if you see, actually English have got 25 questions, general awareness have got 25 questions, numerical ability have got 18 questions, and reasoning ability has got 32 questions. So all in all, there will be 100 questions. Fine. Each of 3 marks, that gives us 300 marks. Fine. So if you go by the individual breakdown, it is 75, 75, 54, 96, right? Just for your reference, so that you are able to at least identify the strong portions where you need to work, and the weak portions as well, from where you can improve and fetch a lot. So we'll see in detail. Now firstly, the importance of previous year papers I would like to highlight here. See, previous year papers plays a very important role. So first of all, I suggest each and every candidate who is appearing for this examination that 2011 to 2020 पेपर्स इज़ अ मस्ट. बिलीव मी, कुछ करो या ना करो, उससे पहले 2011 से 2020 के पेपर्स करो, क्योंकि आधे क्वेश्चंस उसमें से रिपीट होंगे. फाइन. एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द पैटर्न कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. बिलीव मी, कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, और अगर आप उतना ही प्रिपेयर करो, फाइन, इधर उधर ज़्यादा नहीं भटक कर, मतलब जितना ज़रूरत है उतना रिलेटेड ही आप पढ़ो, तो उसमें ही आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा. सो एज आई वाज सेइंग कि क्वेश्चंस डू रिपीट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स. इंग्लिश में synonyms, antonyms, idiom phrases, they have been repeated from the past papers. जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके पूछते हैं काफ़ी. करंट अफेयर्स दे आस्क वेरी लेस. अभी काफ़ी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है. And same field related questions are repeated, for example sports related, your ministry related, कुछ भी इस टाइप की books, ठीक है, and various dance forms, grasslands, all of that. तो ये field related questions पूछते हैं बहुत. मैथ्स में they ask the same pattern questions, believe me. अगर कोई बोर्ड का क्वेश्चन है तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सेम वो पूछेंगे, कोई एवरेज स्पीड का है तो वो भी सेम पूछेंगे. तो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस हैव बीन समवेयर रिपीटेड इन द प्रीवियस पेपर्स. बस वो नाम चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, दैट्स इट. बाकी द मीनिंग ऑफ द एंटायर क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. सो मैथ्स में यू कैन फेच अ लॉट मैनी मार्क्स. रीजनिंग में डिट्टो क्वेश्चन, बिलीव मी, 10 से 15 डिट्टो आते हैं बिल्कुल, ठीक है. एम्बेडेड फिगर्स, फिगर कंप्लीशन एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये बिल्कुल जो है फ्री के नंबर हैं अगर बोलूँ तो. अगर आप सिर्फ प्रीवियस पेपर्स भी करके जाए तो स्कोर ऑफ 180 इज ईजिली पॉसिबल. Fine, but our target is not just to score 180 or 170 odd marks, but our target is to score more than 200, so that merit में बाद में कभी issue नहीं आए. Although merit is a thing to ponder upon later in the stage, but then still we have to think about that also. Now if I go to English section में there are very छोटी चीज़ें हैं. synonyms है, antonyms है, word filling, error detection, idiom phrases. ये सारे 5 टॉपिक मोस्टली अगर आप करके जाओ यहाँ से 5 से 6 टॉपिक, फॉर एग्जांपल स्पॉटिंग एरर्स एंड ऑल, सो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. और आप मॉक टेस्ट लगाओ, जितने लगा सकते हो आप. ये सब जो भी आप प्रिपेयर करोगे टॉपिक इसके बाद. एंड इनफैक्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स में तो पहले भी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो ऑप्शंस में से ही घुमा के फिर आपको क्वेश्चंस पुट अप करते हैं. सो दिस गोज लाइक दैट.
फाइन. सो 25 अगर क्वेश्चंस हैं तो यू विल बी इजीली एबल टू डू अराउंड लेट्स से 15 or 18. Fine. And all those candidates who have good command of the language, so they'll find easy English part particularly. Now we'll move on to the GK. GK में काफ़ी क्योंकि vast I do realize this thing and often candidates ask me sir क्या करना है, कहाँ से कितना करना है. तो see GK में बहुत specific रहना है. देखो स्टैटिक स्पोर्ट्स की पूरी टर्मिनोलॉजी, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है, क्या स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें वो पढ़ो. कैपिटल्स अलग अलग जो है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड अगर कुछ हुआ है, फाइन, दौड़ में, जंपिंग में, कुछ भी हुआ है फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मिनिस्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, दिस यू विल गेट इन द लूसेंट बुक. फाइन. एंड ग्रासलैंड्स, वॉल्केनिक साइज, इक्वेटर क्रॉसिंग, साइंस एप्लीकेशन बेस्ड, बहुत बेसिक वाले 10th रिलेटेड, हेडक्वार्टर्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, बैटल्स, मुगल, कांग्रेस सेशंस इंपॉर्टेंट वाले, अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, ध्यानचंद एंड ऑल ऑफ दैट, ऑबिचुअरीज जो फेमस ऑबिचुअरीज हैं, अगर रिसेंट में कुछ भी हुआ है तो उनको भी थोड़ा सा देखना, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड डेकोरेशंस, फेमस पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट बुक्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जीके. तो अगर आप इतना भी करके जाओगे तो यू विल फाइंड कि आप 18 क्वेश्चन से 18 में से यू विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 10, राइट. और बाकी यू कैन अप्लाई दी एलिमिनेशन थिंग ऑल्सो इन अदर्स, बट वो काफ़ी जब श्योर होते हैं तभी करते हैं, मतलब तुक्के में नहीं करना है ऐसा. फाइन. अवॉइड नेगेटिव मार्किंग. मैथ्स में इट्स जस्ट रिविजन एंड प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट. इसमें मैं आई कैन नॉट टेल यू कि आप ये करो. इफ़ यू गो थ्रू द सिलेबस, बेसिकली गो थ्रू द नोटिफिकेशन, देयर द सिलेबस इज मेंशन. तो सिलेबस में जो लिखा है बस टिक टू दैट, ठीक है. नो ट्रिग्नोमेट्री, नो आई मीन ऑल ऑफ दैट, ठीक है. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ नहीं आता है. सो जितना पूछा जाए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, बहुत अर्थमेटिक, जो बेसिक अर्थमेटिक है उससे ही क्वेश्चंस आते हैं. आप जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना बेटर है आपके मैथ्स के लिए. फाइन. सो मॉक टेस्ट लगाओ. उसके बाद तो मैथ्स क्योंकि आप एक ही चीज़ से सुधार सकते हो, दैट इज ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस. अगर आप सोचोगे क्वेश्चन देखे कि मैं बना लूँगा, तो माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग. You have to practice that thing, fine, because time का भी एक factor है. After this your reasoning is again reasoning to same dot pattern questions and figure embedded as I said initially. Analogy आती है, odd one out, figure completion, series in figures, ठीक है. All of these questions are asked. And reasoning में if you go through the previous questions again you will have very good idea as to how they are asking, and बहुत basic वाला होता है, ठीक है. You can just apply normal common sense there. I mean थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है. सो देर इज नथिंग दैट इज मतलब रॉकेट साइंस, कुछ अलग से आपको कुछ डिड्यूस करके आपको सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. बहुत सिंपल रहता है. नाउ फॉर द मॉक टेस्ट, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बूस्ट योर स्कोर. बिलीव मी, इफ यू वांट टू बूस्ट योर स्कोर फ्रॉम वट एवर यू करेंटली गेटिंग या वट एवर यू एमिंग फॉर, तो मॉक टेस्ट आर द ओनली थिंग दैट गोना हेल्प यू इंक्रीज योर स्कोर. सो ऑप्ट फॉर एनी मॉक टेस्ट सीरीज, और या कोई भी बुक परचेज कर लो, ठीक है. ऑनलाइन पे काफ़ी मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ आते हैं अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग जो भी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन साइट्स. आई एम नॉट मेंशनिंग कि कुछ प्रमोशन है उसके लिए, बट देन इट इज़ अप टू योर चॉइस. जहाँ पे भी दिखे ज़्यादा अच्छे मॉक टेस्ट हैं, 15-20 जितने भी लगा सकते हो लगाओ. या अगर बुक लेनी है फिजिकली उसमें करना है तो दिशा पब्लिकेशन या आर्यंत, ऐसे काफ़ी और भी बुक्स हैं, यू कैन परचेज एनी वन. बट क्वेश्चन सही होने चाहिए. क्वेश्चन नहीं कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही गलत है, फाइन, और उसको आप बेफालतू का सॉल्व करे जा रहे हो, तो मेक श्योर कि थोड़ा सा लेजिट उससे हो. तो दैट इज वाई मेंशन ऑल दीज 2 बुक्स. सो ईदर यू कैन परचेज एनी वन ऑफ द बुक्स फ्रॉम हेयर और यू कैन परचेज अ ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है. इट इज़ अप टू यू. अटेम्प्ट्स इन एग्जाम, इफ आई टॉक अबाउट एवरेज अटेम्प्ट्स, अगर मैं बोलूँ बहुत एवरेज, इंग्लिश में 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, सो यू आर गेटिंग अराउंड 45 to 60 मार्क्स. जनरल अवेयरनेस में अगेन 15 to 20 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो 45 to 60 मार्क्स. न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 से 15 और रीजनिंग 25 से 28. सी दीज आर बेयर मिनिमम दैट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इतना नॉर्मल आपका इतना होना चाहिए, फाइन, तब जाके इफ़ यू आर एमिंग लेट्स से फॉर 201 मार्क्स इफ यू आर गेटिंग, तो यू विल सी कि आपको मिलेगा अराउंड 180 मार्क्स. दिस हैज़ हैपेंड. ऑल दोज हु हैव अपीयर्ड प्रीवियसली, you can contact them and you can you can note down this thing कि whenever they thought they'll be getting 200 plus, they ended up getting 180.
जब उन्होंने सोचा 230 मिलेगा तो दे गॉट जस्ट 200. तो आई मीन जितना भी आपका नॉर्मल बन रहा है इन योर पेपर व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग, इफ यू थिंक यू आर गेटिंग 220 और समथिंग, थोड़ा बहुत गो फॉर थोड़ा और मोर. ठीक है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव करो, नो, बट ट्राई टू सॉल्व कुछ और क्वेश्चंस सो दैट यू गेट गुड मार्क्स. सो माय सजेशन वुड बी दैट यू एम फॉर दिस थिंग 249 वाला, द अपर लिमिट यहाँ पे. ठीक है, फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर एंड वर्क हार्ड ऑब्वियसली. सो व्हेन यू एम फॉर 249 you will see that you are getting somewhere around 220 230 something around that figure mark. So that is also a very very good score, decent score, फाइन. और अगर इससे ज़्यादा भी आप कर रहे हो तो देन तो ऑब्वियसली दैट विल रिफ्लेक्ट योर हार्ड वर्क एज वेल. सो दीज आर द बेयर मिनिमम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. यू हैव टू हैव इतना अटेम्प्ट करना है, फाइन, इफ यू वांट टू स्टे इन द मेरिट एंड ऑल ऑफ दैट. तो these things you have to do it, fine. So that was the strategy, basically a very quick strategy that I wanted to share with you people so that you don't waste a lot of time. और इधर उधर चैनल्स पे बहुत मतलब बकवास की चीज़ें इधर उधर बोली जा रही हैं. सो आई मीन डोंट पे मच हीट टू इट, जस्ट स्टिक टू आई मीन बेसिक्स एंड ऑल. ठीक है, बिकॉज दिस एग्जाम डज नॉट रिक्वायर्स एनी सॉर्ट ऑफ कुछ अलग सा रॉकेट साइंस मटेरियल. ठीक है, दीज आर वेरी वेरी आई मीन सिंपल, और इस टेस्ट को उतना सिंपल ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है. सो दैट वॉज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू कन्वे, and thank you. We'll see you in another video. Till then, like, share and subscribe with your friends as well. We'll see you in the next one.